So good morning dear students, welcome back again. Now let us move further. Yesterday I described about the people as a resource, how people are considered as a resource and why they are considered as a resource, and what are the ways to make people as a useful resource. So by now, in precise form, you have come to know, you have gathered the information about people which are considered as a resource. So now through these two stories, that is the story of Sakal and the story of Vilas, through these two stories I would like to explain you how the human resource and in what ways the investment in human resource is very important. Now you can see here there are two boys standing over here. This is Sakal and this is Vilas. You can see, you can make out from the condition itself that Sakal is looking like a very successful person, and on the next side you can see Vilas who is very lean. From his condition also you can make out that he must be struggling to survive. So now these two friends, that is Vilas and Sakal, they both live in the same village. And this Sakal, he is a 12-year-old boy. Mother is Sheila. She looks after the domestic chores. घर के कामों को देखती है. Sakal helps the mother in her household works. He also looks after the younger brothers and sisters in the family. He has an uncle, चाचा है इनके, and uncle, he has already passed his matriculation examination. Matriculation examination means 10th standard examination pass कर चुके हैं. लेकिन uncle is sitting idly at home with no job. So both mother and father of Sakal, they forced him to join a village school. He was very intelligent boy, so he completed his higher education there, and after that his father persuaded him for further studies, and for his further studies he raised the funds, he took the loan, and he gave him a vocational course in computers. इसको कंप्यूटर्स में वोकेशनल कोर्स उन्होंने करवाया. ठीक है. आफ्टर दैट बहुत इसके अंदर पैशन था आगे बढ़ने के लिए. उसने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया. थोड़े दिन बाद उसको प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई. उसके बाद उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, और इस सॉफ्टवेयर से क्या हुआ, उसकी सेल बढ़ गई, एंड सेल के बढ़ने के बाद उसके बॉस ने इसके काम को एक्नॉलेज किया एंड उसको प्रमोशन भी मिल गया. नाउ on the other hand, on the other side, we can see that there is Vilas. Okay, Vilas, he is a 11-year-old boy जो कि सेम गांव में रहता है जहाँ सकल रहता है. फादर ऑलरेडी इसके फिशरमैन थे जो कि पास्ट अवे, मर चुके हैं. ठीक है. जब वो 2 साल का था तभी ख़त्म हो चुके थे. मदर उसकी गीता है. मदर भी फादर के मरने के बाद पैसा कमाने के लिए शी ऑल्सो स्टार्टेड विद द सेम जॉब टू फीड द फैमिली. फ़िशिंग का काम करने लगी. फ़िश लेके आती थी और पास की मंडी में बेचती थी. उसको सिर्फ पूरे दिन में एक 150 रुपीज़ मिलता था. और साथ ही साथ विलास जो है आर्थराइटिस का पेशेंट बन गया. उसकी मदर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर के पास ले जाए, ना ही उसको वो स्कूल भेज पाती थी. और साथ ही साथ जो है विलास भी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था. वो अपनी मम्मी के कामों में मदद करता था, छोटे भाई बहनों को देखता था. थोड़े दिन बाद मदर के बीमार हो गई. मदर के बीमार होने के बाद जो है अब कोई देखने वाला नहीं था, उसके माँ की देखरेख करने वाला नहीं था, कोई फैमिली में भी नहीं था कि इनकी सपोर्ट कर सके. सो विलास को भी बाद में ज़बरदस्ती इस काम को करना पड़ा जो मदर काम कर रही थी अपने मदर की तरह से विद मच इनकम. नाउ from these two stories, why I brought these stories in front of you, the main reason to bring the story is just to tell you the difference between these two people. ठीक है. इन दोनों के बीच में बताना चाहती थी कि क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या जो है आपको कंपैरिजन देखने को मिलता है. एक तरफ देखोगे कि ये जो सकल है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, हेल्दी है. उसको जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान है. दूसरी बात, विलास जो है
विलास आर्थराइटिस का पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके पास पैसा नहीं है जो डॉक्टर के पास चला जाए। शकल के पास डिग्री है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, शकल को जॉब भी मिल जाती है। विलास जो है वो सेम वही काम करता रहता है और उसी छोटी इनकम से अपनी मदर के साथ सपोर्ट करता है फैमिली के अंदर। नाउ शकल जो है क्यों ऐसे हुआ सक्सेसफुल, क्योंकि उसको एजुकेशन दी गई, ठीक है, दैट इज़ इट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। इससे क्या हुआ, टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्टिविटी से क्या हुआ, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ, और इससे क्या हुआ था कि इंडिविजुअल सैलरी की वजह से उसको और भी चॉइसेस मिली। विलास में कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ केयर नहीं इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड उसको अपनी लाइफ, पूरी लाइफ जो है फ़िश को बेचकर ही काम चलाना पड़ा था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है। ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे हुआ, आप शकल का एग्जांपल लो, एजुकेशन अच्छी थी, मेडिकल केयर मिला उसको, इससे क्या हुआ, उसको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिला। इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है पीपल में, ये सेम उसी तरह से इन्वेस्टमेंट है जैसे हम लैंड और कैपिटल में करते हैं। अब आप समझ सकते हो कि वाई योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन यू इन एट प्रेजेंट। दिस मच इज़ क्लियर टू यू कि फ्यूचर में आपके अंदर अच्छा रिटर्न मिले, दैट इज़ वाई पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन यू इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड गुड हेल्थ केयर विद न्यूट्रिशियस डाइट एंड ऑल फॉर द बेटर फ्यूचर। सो इन्वेस्टमेंट जब हेल्थ और एजुकेशन पे होती है, इससे हाई रिटर्न हमको मिलता है। और एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो जो है एजुकेशन, अपनी बच्चे के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वाई, बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट importance of education, they have realized the importance of education, and side by side they are also conscious about the proper nutrition and hygiene of the child, ठीक है। So in this way a virtuous cycle is created, and side by side a vicious cycle is also created, and I would like to explain you further how this virtuous and vicious cycle is created over here.